class में हमने we started with the greedy approach and then we completed the knapsack problem, the activity selection problem और उसके बाद हमने शुरू की थी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. सिंगल सोर्स shortest path. So we just tried to trace the solution for finding single source shortest path for a graph G that was given in the form of V and E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. Further, it was a directed graph. तो हमने शुरू कैसे किया था कि हमने एक ग्राफ ले लिया था. Then for this graph which was directed in nature, directed and weighted, then we constructed its cost matrix or its adjacency matrix. Then after constructing the adjacency matrix, a vertex V was given to us which was acting as source. Then it means we were to find the distance from V to A, then V to B and so on. Means from V vertex we need to find the distances which are shortest, or you can say distances of the paths, shortest paths for each and every other vertex present within the graph. So this was the statement of your problem. और हमने start कैसे किया था that we took dist as an array. So dist of I was actually representing the cost, or you can say cost or distance, actually distance of the shortest path from vertex V to vertex I. So this was the actual interpretation for your dist vector. Dist means distance of shortest path. Shortest path from vertex V to the vertex I. So this was the notation that we used earlier. इसके बाद हमने क्या किया था? We initialized dist in the first instance to be equal to the cost of V of I. Means when zero number of intermediate vertices were there in between vertex V and I. तो उस केस में जो shortest distance है वो क्या था? तो उस वाले जो केस में shortest distance है that was directly equal to the value of its cost. Means suppose it is V, it is I. तो यहाँ पर जो एंट्री आनी थी वो किसके इक्वल थी? That was equal to dist of I. और you can say cost from V to I. तो ये हमने इनिशियलाइज किया हुआ था. ओके, रिकॉल कर पा रहे हो ना बेटे सभी लोग? तो हमने क्या किया था? कोस्ट मैट्रिक्स लिया था, उसके बाद हमने डिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया था फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n. इसके बाद हमने क्या किया था? एक विजिटेड सेट लिया था विच वाज इनिशियली एम्प्टी, एक नॉन विजिटेड सेट लिया था विच वाज कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस टिल a to f और g जितना भी था. n की n vertices इसमें ले ली थी. Then we found the dist for all vertices for I is equal to 1 to n. उसके बाद हमने क्या किया था? We choose the I such that dist of I was minimum. इनमें से जो dist I minimum था वो हमने चूज कर लिया था. वो वाला जो dist of I minimum था उसको हमने क्या किया था? नॉन विजिटेड से निकाल के विजिटेड में डाल दिया था. ओके, तो यहाँ पर एक एक वर्टेक्स बढ़ता गया था और यहाँ से एक एक वर्टेक्स कम होता गया था नॉन विजिटेड से. डन. एक बार जो हमने सपोज वर्टेक्स u यहाँ पर डाल लिया, ये वाला वर्टेक्स u शिफ्ट हो गया है फ्रॉम नॉन विजिटेड टू विजिटेड. उसके बाद हमने देखा था कि ये वाला जो नॉन विजिटेड टू विजिटेड में u वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है, तो इट में आल्सो लेट द डिस्टेंस ऑफ अदर वर्टिसेस चेंज. वो कैसे चेंज होगी थी कि सपोज a2, सपोज v2 एक डिस्टेंस मेरी आई, सपोज आई एक वर्टेक्स था, तो यहां तक की डिस्टेंस v2i पहले पड़ी थी इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट ऑफ i. ओके, अब कहता है कि v2 ये u गया जो अभी अभी मैंने वर्टेक्स इंक्लूड किया है, और फिर u2i गया. ओके, तो कहता है मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा था, ये दोनों जो पाथ्स हैं, इन दोनों पाथ्स में से जो मिनिमम है, सपोज इट इज रिजल्टिंग इन द मिनिमम डिस्टेंस, देन वी नीड टू अपडेट द दिस डिस्ट. तो ये वाली डिस्ट उस केस में क्या होगी थी? इक्वल टू डिस्ट ऑफ i वाज इक्वल टू डिस्ट ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ रीचिंग फ्रॉम u टू i. तो ये हमने कल स्टेप्स किए थे बेटा.
you all must to be able to recall. Okay, now we need to write the algorithm for this whole process. Okay, so the algorithm for this process, let us name that algorithm be equal to SS, or you can say single source shortest path algorithm. Single source shortest path प्रॉब्लम. अब कहता है जो इसको आर्ग्यूमेंट्स पास हुए, वो कहता है v पास हुआ, एक इसको कोस्ट मैट्रिक्स एक पास हुआ, और एक डिस्ट जो हमें जिसमें रिजल्ट चाहिए वो पास हुआ, और n नंबर ऑफ जो वर्टिसेस है वो पास हुआ. फाइन. अब कहता है कि इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था विजिटेड एंड नॉन विजिटेड. कहता है वो जो विजिटेड और नॉन विजिटेड सेट्स की कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इसने क्या लिया, एक फ्लैग लिया s. कहता है s ऑफ I is equal to true if I is in visited set and is equal to false if I is in non-visited set. तो हमने इसका काम किससे कराया, विजिटेड और नॉन विजिटेड का हमने एक फ्लैग s से कराया. ओके फाइन बेटे, सबको क्लियर है. तो कहता है जो फर्स्ट काम करना है, फर्स्ट काम हमें अपने एल्गोरिथम में दैट इज इक्वल टू फॉर I इज इक्वल टू 1 to n करना क्या है, वी नीड टू पुट ऑल द वर्टिसेस इन द नॉन विजिटेड सेट. इट मींस s of I इज इक्वल टू फॉल्स. ओके, और इसके साथ साथ हमें क्या कर देना, डिस्ट को भी इनिशियलाइज कर देना, डिस्ट ऑफ I. तो डिस्ट ऑफ I पहले इंस्टेंस में क्या है, इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ v टू I है, डायरेक्ट कोस्ट. तो इसके साथ साथ हमें क्या कर देना है, डिस्ट ऑफ I इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ v, I. तो कहता है ये हमने पहले ही स्टेटमेंट में किया, दैट फॉर I इज इक्वल टू 1 to n. ये हमने दो काम कर दिए. अब कहता है कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास विजिटेड सेट है, एक नॉन विजिटेड सेट है. नॉन विजिटेड सेट मेरा एम्प्टी है. विजिटेड सेट में मेरे पास सपोज 5 वर्टिसेस है, A B C D एंड E, पांचों की 5 पड़ी है. अब कहता है सपोज V इज इक्वल टू A था, सोर्स वर्टेक्स मेरा A था. तो लॉजिकली तो A जो है वो तो पहले इंस्टेंस पे विजिटेड में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि V से तो शुरू ही करना है उसको. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम V, और V से अपने खुद की डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 0. इट मींस हमें नेक्स्ट वाला जो काम करना है वो क्या करना है कि S ऑफ V इज इक्वल टू ट्रू along with dist of V is equal to 0.0. कि अपने से अपने तक जाने में तो इसको 0 डिस्टेंस ही लगेगी. इसके बाद नेक्स्ट काम बेटे हमने क्या करना है, फॉर I is equal to 2 to n minus 1. अब ये 2 to n minus 1 क्यों चला ये भी हम दिखाएंगे अभी. ओके, तो कहता है 2 to n. अब इसके बाद हमें क्या करनी थी, जो ऊपर वाली जो डिस्ट है, ऊपर जो हमने डिस्ट इनिशियलाइज की है, इनमें से वो वाला वर्टेक्स चूज करना था जिसकी डिस्ट मिनिमम है. तो हमने क्या लिखा, कहते हैं चूज a u such that s of u is equal to false and dist of u is minimum. Dist of u is minimum. समझ रहे बेटा इस स्टेटमेंट को, कि हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स चूज करना है जो कि नॉन विजिटेड सेट में हो, प्लस उसकी जो डिस्टेंस है टू v वो उसकी मिनिमम हो. तो ये काम करने के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी. सपोज कोई एक ऐसा u आ गया. अब कहता है ये जो u आ गया है, तो इट मींस क्या है कि इस वाले u को हमें किस में डाल देना है, विजिटेड सेट में डाल देना है. इट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग s ऑफ u विल बी इक्वल टू ट्रू. पहले फॉल्स था, अब क्या हो गया, इज इक्वल टू ट्रू हो गया. अब इसके साथ साथ हम क्या कर रहे थे बेटे, जो हमने u अभी अभी डाला है, तो कहता है अब हम u के नेबर्स चेक करेंगे. ओके, u के अब नेबर्स चेक करेंगे, और उसके साथ क्या चेक करेंगे कि ये जो नेबर्स है, सपोज ये C D और E है, तो कहता है इनकी डिस्टेंस, जो पहले इनकी डिस्ट थी, डिस्ट ऑफ A और डिस्ट ऑफ B और डिस्ट ऑफ C, कहता है कि ये जो पहले वाली डिस्टेंसेस हैं, क्या वो, यदि मैं V2 U जाता हूं और U2 A जाता हूं, ऐसे मैं V2 U जाता हूं, U2 में B जाता हूं, V2 U जाता हूं, U2 में C जाता हूं, मतलब ये वाला जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसको कंपेयर करूंगा, इस वाले डिस्टेंस को कंपेयर करूंगा.
इसके किसको कंपेयर करूंगा, इस डिस्टेंस को कंपेयर करूंगा, इससे किसको कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। मैं जितने भी यू के नेबर्स हैं उन सब की मैं पुराने वाली डिस्टेंसेस अब नए वाली डिस्टेंस जो कि यू के थ्रू जा रहा है जो पाथ उससे कंपेयर करूंगा। इफ दिस डिस्टेंस इज लेसर, if distance is less than this the older one, then we need to update its distance। ओके तो ये वाला बेटे काम कैसे कर रहा है, क्या कहता है, फॉर इसी वाले लूप के अंदर बेटे ना, फॉर ऑल w, फॉर ऑल w which are neighbors of u and s of w is equal to जिनका फॉल्स था, है ना, जिनका s of w फॉल्स था। ओके आर यू गेटिंग दिस, की वो वाले कंसिडर करने हैं जो कि नॉन विजिटेड सेट में फॉल कर रहे हो, प्लस वो यू के नेबर हो, यू के नेबर्स हो। तो हमें क्या चेक करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग, इफ कहता है डिस्ट ऑफ W जो पुराने वाली डिस्ट थी, इफ इट वाज ग्रेटर, किससे, डिस्ट ऑफ W है बेटे, डिस्ट ऑफ W, इफ इट इज ग्रेटर देन डिस्ट ऑफ U, कि पहले वो V2U तक आया, उसके बाद कोस्ट ऑफ U2W, कहता है ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो देन क्या कर देना हमें, देन वी नीड टू अपडेट द डिस्ट ऑफ W, और डिस्ट ऑफ W इज इक्वल टू किसके होने वाली है, जो ये वाली डिस्टेंस है, डिस्ट ऑफ कि V2U तक आया प्लस V फिर U2W तक जाएगा, तो इससे हम इसको मॉडिफाई करें। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम फॉर योर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। और एंड में जब ये वाला लूप खत्म हो गया, जब ये वाला लूप खत्म हो गया, तो एंड में रिजल्ट किसमें बचा हमारा, किसमें आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा बेटा डिस्ट एरे में, रिजल्ट डिस्ट, कहता है इसको डिस्ट को आप रिटर्न कर दो। तो एक तरह से डिस्टेंस कौन सा, एक कितनी डायमेंशंस थी डिस्ट की, 1:n का एक एरे था, तो डिस्ट ऑफ ए में क्या आ जाएगा कि V2A तक की डिस्टेंस, ऐसे ही डिस्ट ऑफ बी में क्या आ जाएगा V2B तक की डिस्टेंस, ऐसे ही डिस्ट ऑफ n जो भी होगा उसमें क्या आ जाएगा V2nth वर्टेक्स तक की डिस्टेंस जाएगी। So this is the complete algorithm for your single source shortest path. Just try to map it with the example that we traced yesterday. Okay. Any question बेटे regarding this? अब क्वेश्चन बेटे आपका क्या है कि यहाँ पर ये जो लूप है ये n-1 तक क्यों चला, दिस इज द क्वेश्चन। तो कहता है इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कहता है मेरे पास टोटल n वर्टिसेस थी, उन n वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स v थी, ठीक है, तो जब v वर्टेक्स मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दी, तो मुझे कितने वर्टिसेस तक डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है, n-1 वर्टिसेस तक मुझे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है। कहता है जो पहले वाला जो मैंने डिस्ट इनिशियलाइज किया, तो कहता है कि उस वाली डिस्ट को मैंने डायरेक्ट कोस्मेटिक से ही उठा लिया था, और इस डिस्ट में से मैंने क्या चूज कर लिया, मिनिमम चूज कर लिया, मिनिमम डिस्ट वाला यू चूज कर लिया, उसको रिजल्ट में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v पहले ही था, उसके बाद एक वर्टेक्स और ऐड हो गया, मतलब एक काम हमने कर लिया इन n-1 में से। उसके बाद कहता है फिर से सेकंड डिस्ट चूज किया, डन। कहता है ये वाली प्रोसेस हम रिपीट करते गए, कब तक, अब एज्यूम करो कि वो वाला केस जब नॉन विजिटेड सेट में मेरा खाली एक ही वर्टेक्स पड़ा था, सिंगल वर्टेक्स। अब कहता है जब ये सिंगल वर्टेक्स मेरा नॉन विजिटेड लिस्ट में पड़ा है, तो सिंगल वर्टेक्स के लिए मुझे आइट्रेशन दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिंगल वर्टेक्स है ये तो अपने आप में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब पूरे की पूरी लूपिंग में यहां पर ये कह रहा हूं ना मैं, ये जो चूज अ यू सच दैट दिस इज ट्रू, तो कहता है इस वाले केस में जब लिस्ट में जब नॉन विजिटेड सेट में सिंगल वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स ही है खाली, तो कहता है उस वन वर्टेक्स के लिए ये वाला सारा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही बचा हुआ क्या है, सिंगल वर्टेक्स है। इसका मतलब जो उसकी डिस्ट है वो एट लास्ट अपने आप में मिनिमम हो चुकी है। वो मिनिमम कैसे होगी जब नॉन विजिटेड में मेरे दो वर्टिसेस थे, ये वाला वर्टेक्स था, ये वाला वर्टेक्स था, अब नॉन विजिटेड से जब ये गया, डन, ये चूज हुआ, तो इसके चूज होने से जो अपडेशन तो हो चुकी है ना इसके में भी, यस नो बेटे,
एडिशन तो हो चुकी होगी ना, कि पुराने वाला मिनिमम था या इसकी एडिशन के आने के बाद वो मिनिमम हुआ। तो कहता है जब ये लास्ट वाला सिंगल वर्टेक्स बचेगा नॉन वेस्टेड में, तो उसके लिए वी जस्ट डू नॉट नीड एनी आइट्रेशन, दिस इज assumed and very well understood that this is be the minimal one. So this is the answer for you. कहता है कि n-1 फाइंड आउट करने थे, लेकिन इन n-1 में से भी जो लास्ट वाला वर्टेक्स है, लास्ट वाले वर्टेक्स के लिए कहता है मुझे कोई आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली जो डिस्टेंस है वो तो जो जब सेकंड लास्ट वाला वर्टेक्स इंक्लूड हुआ होगा, दैट हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट्स डिस्टेंस. गॉट द आंसर बेटे? So the next problem that we are going to solve under the greedy approach is our minimum spanning tree. The minimum spanning tree. Minimum spanning tree using greedy approach. अब कहता है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? We first need to understand the definition of a spanning tree. So let us assume that we have a G which is in the form of V and E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. Along with this, graph is the undirected one. Undirected graph है plus weighted graph है. Undirected and weighted graph. Example हमने कल क्या लिया था? Let it be the graph and these are the edges between them. Let it be 1, 2, 3, 4, 5 and 6 be their weights. Then he says that a spanning tree of a graph G, which is represented using V and E, is a subgraph G, which is equal to V and E prime if and only if G, इसको G prime बोलो, is a subgraph G prime, if and only if G prime is a tree. But simplest definition of spanning tree की, spanning tree of a graph G is a subgraph G prime if and only if G prime is a tree. Tree means a cyclic graph. साइक्लिक ग्राफ. अब कहता है इसके साइक्लिक ग्राफ कौन कौन से बन सकते हैं बेटे? ये इसका एक असाइक्लिक ग्राफ है. डन. असाइक्लिक ग्राफ भी है, ट्री भी है, दोनों वन एंड सेम थिंग. कहता है एक इसका ये बन सकता है, और क्या बन सकता है बेटा इसका? एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक इसका ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? ये बन सकता है, एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे इसके क्या है बेटे? स्पैनिंग ट्रीज. ये सभी के सभी इसके स्पैनिंग ट्रीज. अब कहता है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम स्पैनिंग ट्री. Minimum spanning tree is a tree out of the spanning trees which has the minimum path length. Which has the minimum path length. Minimum path length. कहता है कि इनकी क्योंकि कुछ एक डिस्टेंस है, जैसे 1, 2, 3, ऐसे इसकी डिस्टेंस है 1, उसके बाद 7, उसके बाद 3, ऐसे इनकी डिस्टेंसेज हैं 5 है, 6 है और 3 है. ऐसे इन सब की ये वेटेड एजेस हैं. कहता है इन सब की वेटेड एजेस को क्या करो? आप ऐड कर दो, उनके वेट को क्या करो? ऐड कर दो बेटे सबको. तो कहता है जो वेट को ऐड करोगे और वो जो डिस्टेंस आएगी टोटल इन सब के, जैसे इसको ऐड कर दिया 1 + 2 + 3, कितना इसकी पाथ लेंथ कितनी होगी? 6 होगी इस वाले ग्राफ की. ऐसे 3, 7 इसकी 11 होगी. ऐसे इसको ऐड कर दो, ऐसे इसको ऐड कर दो. कहता है वन आउट ऑफ दीज ऑल स्पैनिंग ट्रीज which has the minimum path length is called the minimum spanning tree. So this is the problem statement. ये काम हमें अब करना है. अब कहता है इसके लिए फिर से आप क्या करो? कंस्ट्रेंट्स ढूंढ लो. इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स कौन से आएंगे बेटा? इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स बताओ कि जो एजेस या फिर जो वर्टिसेस रिजल्ट में आनी है, दे शुड बी फ्रॉम 1 to n ओनली. ये तो क्या हो जाना है? एक्सप्लिसिट हो जाना बेटा. ये तो क्या है? एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट है कि जो हम रिजल्ट के ऊपर डोमेन्स फिक्स कर रहे हैं. अब कहता है जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या है? इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं? दैट इट शुड बी अ स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री होना चाहिए.
ठीक है, इट कम्स अंडर द इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद कहता है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है? ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इसके लिए क्या है बेटे, सोच करके बताओ। दैट द पाथ लेंथ और द total path length of the spanning tree should be minimum, should be minimum। तो कहता है ये ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है। इसके अलावा और भी कहता है प्रॉब्लम कौन सी है, इफ आई लुक दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एजेस, कि हमें एक जी दिया हुआ था वी और ई, अब हमें ड्राइव क्या करना है, जी प्राइम ड्राइव करना है वी और ई, वेयर वेयर ई प्राइम इज ए सबसेट ऑफ ई। तो ये कौन सी, यदि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखता हूं देन इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ सबसेट पैराडाइम। सबसेट पैराडाइम की बेटे प्रॉब्लम ये दिखाई देगी हमें, यदि मैं ई की कंटेक्स्ट में देख रहा हूं। यदि मैं इसको कहता है वर्टिसेस के कंटेक्स्ट में देखूं तो ये प्रॉब्लम मुझे क्या दिखेगी, ऑर्डरिंग पैराडाइम दिखेगी। ये मुझे क्या दिया था, ए बी सी डी ई वर्टिसेस दिया हुआ था। मुझे जो स्पैनिंग ट्री मिला वो क्या कहता है कि भाई डी से शुरू कर, फिर ई तक जा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से जा। तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम एक स्पैनिंग ट्री। तो कहते हैं दोनों ही तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई परेशानी है, प्लीज फील फ्री टू। तो कहता है अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम देयर आर टू एल्गोरिथम, वन इज द Prim's algorithm and one is the Kruskal's algorithm। बेटा ये दोनों ही साइंटिस्ट एक्चुअली, प्रीम एज वेल एज क्रूस्कल, दे प्रपोज द सॉल्यूशन फॉर योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टडी देयर सॉल्यूशन वन बाय वन। ओके, तो कहते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम, हम शुरू करेंगे सबसे पहले। तो कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि प्रिम्स एल्गोरिथम, पहले हम इसका एक टेस्ट केस देखेंगे देन वी ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम सेज दैट लेट अस draw a graph which is a b then c then d then e, एंड कहता है a to b is equal to 3a, b to c is equal to 7a, then a to c is equal to 2, then c to d is equal to 5, then c to e, this h is equal to 1, and then d to e is equal to 4 and d to b is equal to 6। तो ये कहता है मुझे क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ किसकी फॉर्म में है, एक टप्पल v और e की फॉर्म में है। तो v क्या है, इज इक्वल टू सेट है a b c d एंड e, और जो e है, e अपने आप में क्या है, सेट ऑफ एजेस है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम किससे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एडजेंसी मैट्रिक्स से। एडजेंसी मैट्रिक्स जब इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, a b c d एंड e रोज, a b c d एंड e कॉलम्स। इसके बाद क्या करोगे, a टू e तो क्या रहने वाला है, जीरो, तो डायगोनल तो जीरो ही रहने वाला है। इसके अलावा जो a b के बीच में 3 है, ऐसे ही b और a के बीच में भी कितनी है, 3 है। तो मीन्स क्या होगा, अपर डायगोनल इसका कॉपी हो जाएगा लोअर। तो कहता है इस तरीके से इसको फिल कर लो, तो ये आपकी पूरी एडजेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी। इज इट फाइन? अब कहता है Prim's algorithm says that suppose we need to find, if we wish to have the minimum spanning tree out of these, then just follow the same process as that of single source shortest path। It means we need to create two sets, one is visited, one is non-visited। Done. Visited set was initially empty, non-visited set was containing all the vertices, that is A, B, C, D and E। नॉन विजिटेड सेट में मेरे पास सारी की सारी वर्टिसेस पड़ी थी। जो पहला स्टेप है, कहता है चूज द एज विद मिनिमम वेट। वो वाली मिनिमम वेट की एज कौन सी है, सीई। ठीक है, तो कहता है डन। तो कहता है इस सी को क्या करो, दोनों वर्टिसेस को विजिटेड से निकालो और नॉन विजिटेड से निकालो और विजिटेड में डाल दो। ओके, तो कहता है जो मेरा रिजल्ट में है, एक तरह से मैंने कौन सी एज रिजल्ट में डाल दी, सी और ई। सी और ई वाली जो एज है वो मैंने रिजल्ट में डाल दी और उसका वेट कितना था, इज इक्वल टू 1।
डन। अब कहता है नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कहता है जब इसको डाल दिया मैंने, अब कहता है कि जो नॉन विजिटेड सेट से अभी अभी विजिटेड सेट में मूव किया वर्टेक्स सी, और एक वर्टेक्स मूव किया ई। अब कहता है नाउ ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू ऑब्जर्व द नेबर्स ऑफ, try to observe the neighbors of vertices which are in visited, नेबर्स निकालने हैं उन वर्टिसेस के जो कि विजिटेड हैं, एंड नेबर्स देमसेल्फ लाइज इन नॉन विजिटेड सेट। कहता है कि सी और ई के वो वाले नेबर्स निकालने हैं जो कि नॉन विजिटेड में लाई कर रहे हैं। ओके, अब देख लो नॉन विजिटेड में सी के कौन कौन से नेबर्स है बेटे। यहां से सी का एक नेबर ए है, और सी का एक नेबर डी है, और एक सी का एक नेबर ई है। तो कितने नेबर्स हैं इसके, सी के, सी के तीन नेबर्स निकले। कौन कौन से नेबर्स निकले, ए, डी और एक ई। अब कहता है जो ई है इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिटेड में है, तो कहता है ए और डी को कंसिडर करो। तो एक नेबर इसका ए है और एक नेबर इसका क्या है, डी है। ऐसे ही ई को लो, ई के नेबर्स देखो, ई के नेबर्स कौन कौन से हैं, सी है, बी है और डी है। ठीक है, सी, बी और डी। अब कहता है सी को छोड़ दो क्योंकि सी तो ऑलरेडी विजिटेड सेट में है, ये पड़ा है। तो कहता है बी और डी इसके नेबर्स है। तो बी यहां पर आ गया और डी यहां पर आ गया। अब कहता है इनके साथ क्या डिस्टेंसेस भी लिख लो। सी टू डी डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल टू 5 है। सी टू ए डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल टू 2 है। ओके, ऐसे ही ई टू बी डिस्टेंस कितनी है, 7 है। ऐसे ही ई टू डी डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल टू 4 है। तो कहता है जितने भी वर्टिसेस आपके विजिटेड सेट में थे उनके नेबर्स को ऑब्जर्व करो। नेबर्स भी कौन से, जो कि नॉन विजिटेड सेट में। तो कहता है ये मैंने इनके ऑब्जर्वेशन करने के लिए इनको ड्रॉ कर लिया। अब कहता है चूज, चूज द नेबर विच इज which is at minimal distance, which is at minimal distance from vertex in visited set। तो कहता है कि इन में से, इसमें से, है ना, कहता है क्या है कि इसमें से वो एक वर्टेक्स चूज करो इन चारों में से कि जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। तो इनमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा की बेटे, देख करके बताओ। ये वाला 2, ये 2 मिनिमम है, यस नो। इसका मतलब जो नेक्स्ट एज आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, सी और ए आने वाली है। तो क्या करो, सी और ए एज को रिजल्ट में डालो along with its distance which is equal to 2। फाइन, और इसके साथ साथ क्या करो, विजिटेड और नॉन विजिटेड सेट को मॉडिफाई कर दो। तो नॉन विजिटेड सेट में पहले तो विजिटेड सेट में क्या आ जाएगा, सी, ई और ए, और नॉन विजिटेड सेट में आपके क्या बचा है, अब डी और ई बचा है। यहां तक क्लियर है बेटे। अब कहता है क्या है, अब मेरे पास तीन नेबर्स हैं, सी, ई और ए। फिर दोबारा से क्या करो, सी के नेबर्स ड्रॉ करो, ई के और ए के, कौन से, जो कि नॉन लिस्टेड में हो। अब सी के नेबर्स देख लो, सी का नेबर क्या है, डी है, डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ओके, फिर सी का नेबर ई भी है, डिस्टेंस कितनी है बताओ। सी का नेबर ई है, लेकिन ई तो ऑलरेडी इसमें है ना, तो इसको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सी का नेबर ई तो है बट ई इज ऑलरेडी देयर, किसमें पड़ा है, वो ऑलरेडी विजिटेड सेट में पड़ा है, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब कहता है ई पर आ जाओ, ई के नेबर कौन से हैं, बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी, यस नो बेटे। अरे ये देखो ना, ये क्या था, ये एक्चुअल में ये ई नहीं है बेटे, ये बी है, ये बी है, ये बी है। इसको मॉडिफाई कर लो, साथ साथ बोला करो बच्चों। तो कहता है कि ई के नेबर कौन कौन से हैं, बी, सी एंड डी है। तो कहता है बी, सी एंड डी में से सी तो ऑलरेडी इसमें है, तो हमें क्या करना, कंसिडर करना है, बी कंसिडर करना है और डी कंसिडर करना है। ऐसे ही ए के नेबर्स कौन से हैं, ए के नेबर्स बी है और सी है, ए के नेबर्स बी और सी है। तो सी तो ऑलरेडी वहां पर है, इसका मतलब इसका नेबर खाली बी है।
डन। अब कहता है इसके साथ साथ डिस्टेंसेस भी लिख लो। इसकी डिस्टेंस तो 5 है। ई और बी की डिस्टेंस कितनी है बेटे? ई एंड बी, इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 है। और ई और डी की डिस्टेंस कितनी है? ये 4 है। उसके बाद ए और बी की डिस्टेंस कितनी है? ये इज इक्वल टू 3 है। डन। अब फिर दोबारा से वही काम कर रहे हैं कि वो वाला नेबर जो कि मिनिमल डिस्टेंस पर है, वो नेबर इनमें से कौन सा है? ये वाला है, बी। इसका मतलब जो नेक्स्ट एज आनी है वो कौन सी आनी है? ए टू बी वाली आनी है बेटे नेक्स्ट एज। नेक्स्ट एज कौन सी इंक्लूड हुई? ए टू बी। और इसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। डन। तो अब की बार क्या करो, फिर से इस बी को क्या करो, निकाल के सी, ई, ए और बी। उसके बाद नॉन विजिटेड सेट में क्या बचा? डी बचा। डन। अब फिर से कहता है इसके नेबर्स देख लो। सी का नेबर डी है क्या? यस, सी का नेबर डी है। डिस्टेंस कितने पे पड़ा है? 5 पे पड़ा है। उसके बाद क्या ई का नेबर डी है? यस, नो। ई का नेबर डी है। डिस्टेंस कितने पे पड़ा है? 4 पे पड़ा है। उसके बाद क्या बोलता है? ए का नेबर डी है क्या? यस, नो, ए का नेबर डी नहीं है। उसके बाद बी का नेबर डी है क्या? यस, इस बड़ा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 6 है। डन बेटे। तो कहता है फिर से क्या करो, अब इनमें से वो वाला चूज कर लो जो कि मिनिमल डिस्टेंस पे है। वो कौन सा? ई है। तो इसका मतलब नेक्स्ट डिस्टेंस या फिर नेक्स्ट एज कौन सी होनी है? ई टू डी होनी है। और कितने कोस्ट पे होनी है? इज इक्वल टू 4 पे होनी है। डन। अब कहता है नेक्स्ट में क्या करो, अब सी, ई, ए, बी और डी। और नॉन विजिटेड सेट क्या हो गया मेरा? खाली। जब मेरा नॉन विजिटेड सेट खाली हो गया, इट मींस वी नीड टू स्टॉप हियर। और स्टॉप कर देना है। और हमें क्या देना है? दैट दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये मेरा बना मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब इसका क्या देना है? कोस्ट निकाल के दे दो। टोटल कितना हो गया? 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10। तो इसका टोटल मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कोस्ट क्या हो गया? 10। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एज पर आवर प्रिम्स एल्गोरिथम। डन। इनमें से बेटे आप चाहे मैनुअली भी कोशिश कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी सब ग्राफ which is having path length lesser than 10. Okay, so this is your Prim's algorithm. यहां तक बेटे इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Now for writing algorithm for this Prim's algorithm, uh, we have to think just in terms of single source shortest path problem. वहां पे भी हमने क्या किया था? विजिटेड और नॉन विजिटेड दो सेट्स मेंटेन किए थे। तो यहाँ पर भी हम सेम ही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? विजिटेड और नॉन विजिटेड दो सेट्स हम मेंटेन कर रहे हैं। विजिटेड सेट इनिशियली एम्प्टी था और नॉन विजिटेड सेट में सभी के सभी 1 to n वर्टिसेस थे। यही काम किया था ना। अब कहता है वहां पर ये काम एस से हो रहा था, एस फ्लैग से। अब कहता है इन Prim's algorithm दिस वर्क विल बी डन यूजिंग द फ्लैग नियर। कहता है नियर ऑफ ए वर्टेक्स आई विल बी इक्वल टू 0 इफ आई इज इन visited set. If I is in visited set, and it will be equal to a value that is non-zero if it is in non-visited set. Done. अब कहता है इसमें बेटा एक प्रॉब्लम देखो क्या है कि जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में तो हम खाली क्या ले रहे थे? एक डिस्टेंस ले रहे थे, है ना। जो भी डिस्टेंस वो मिनिमम आई जा रही थी कहीं से भी। हम हर एक आइटरेशन में एक वर्टेक्स चूज कर रहे जा रहे थे कि जिसका क्या है, जिसकी डिस्टेंस मेरी मिनिमम हो, है ना। तो वहां पर प्रॉब्लम कहता है इतनी बड़ी नहीं थी। अब कहता है कि यहाँ प्रॉब्लम बेटे थोड़ी सी कैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी कि यहाँ पर अब मुझे ये तो चाहिए चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए कि विजिटेड और नॉन विजिटेड का कंसेप्ट तो रहे ही रहे, ये वाला कंसेप्ट तो रहे रहे। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है? ये जो नॉन विजिटेड के जो नेबर्स हैं ए, बी, डी, ये वाले जो नेबर्स हैं, है ना, इन नेबर्स का मुझे क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस भी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस भी चाहिए इनके साथ साथ इन वाले नेबर्स की। कहता है ये वाले नेबर्स क्या है कि पहली बात तो क्या है कि इन नेबर्स का जो नियर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब कहता है नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो क्लियर है मेरे को, वो तो मैं कर लूंगा। अब कहता है इसके साथ साथ मुझे इस वाले वर्टेक्स की वैल्यू भी चाहिए। जैसे डी यहां पर था, डी से जब मैं सी पर जाता था तो डिस्टेंस 5 है, और जब मैं डी से ई को कनेक्ट करता हूं तो डिस्टेंस 4 है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज में से मुझे खाली ए की वैल्यू स्टोर करके रखनी है। वो वैल्यू भी कौन सी? जो कि मिनिमम डिस्टेंस वाली हो।
तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में नियर ऑफ डी विल बी इक्वल टू द वर्टेक्स ई। इसका मतलब क्या हुआ कि नियर मेरे दो पर्पस सॉल्व करेगा। नियर, इफ वैल्यू ऑफ नियर ऑफ आई इज इक्वल टू 0, इट मींस कि वो विजिटेड वाले सेट में है, इसमें है। इफ इट इज इक्वल टू नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है कि वो नॉन विजिटेड वाले सेट में है। और जो नॉन जीरो वैल्यू होगी, सपोज वो ई है डी के लिए, इसका मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स डी है दैट इज नियर मोस्ट टू वर्टेक्स ई, and E is already there in your visited set। तो बेटे इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम में, प्रिम्स एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड करने वाली बात खाली क्या है कि नियर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि नियर का वैल्यू, नियर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के, जब वो वर्टेक्स विजिटेड सेट में है। नॉट इक्वल टू जीरो होगी जब वर्टेक्स नॉन विजिटेड सेट में है। अलोंग विद दिस इसकी वैल्यू क्या होगी, एक वर्टेक्स जे होगा which belongs to your visited set, and इसके साथ साथ क्या होना है, and cost of I, है ना, cost of I and j वो क्या होनी है, इज इक्वल टू वो मिनिमम। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है बेटे कि j belongs to the visited vertex set and cost of I and j is minimum amongst all। तो कहता है ये इसका बेटा लॉजिक है। अब कहता है इस वाली जो इक्वेशन को, कोस्ट को मैं और कैसे लिख सकता हूं, कोस्ट ऑफ आई और नियर ऑफ आई, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोस्ट ऑफ आई से नियर ऑफ आई, नियर ऑफ आई मुझे ऑलरेडी पता है कि इट इज इक्वल टू जे है। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू जे है, जो अपने आप में विजिटेड सेट से बिलोंग करता है और उसकी डिस्टेंस में। तो बेटा इसमें खाली कॉन्सेप्ट एक नियर की वैल्यू। ओके, तो आई होप कि आप सब लोग नियर की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। यदि किसी को नहीं समझ आई तो बेटा वो कहता है कि लेट प्रिम प्रिम्स बी द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। इसको आर्ग्यूमेंट पास हुए, एक एज वेक्टर पास हुआ, एज मैट्रिक्स पास हुआ, उसको एक पोस्ट पास हुआ, नंबर ऑफ वर्टिसेस पास हुआ और एक टी पास हुआ। अब कहता है यहाँ पे सारी और चीजें तो क्लियर है, टी क्या है, टी कहता है एक मेरा रिजल्ट का मैट्रिक्स है जिसमें रिजल्ट आना है। अब कहता है रिजल्ट क्या है, सपोज मेरे पास चार वर्टिसेस हैं। ओके, चार वर्टिसेस का ग्राफ जी है, इसका जो स्पैनिंग ट्री है या मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, पहली बात तो उसमें कितने नंबर ऑफ एजेस होनी है, इफ n इज इक्वल टू 4, तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है या कोई भी स्पैनिंग ट्री है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितनी एजेस होनी है, n माइनस वन, मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन एजेस होनी है। अब कहता है ये सारी की सारी एजेस में जो किसमें स्टोर करानी है, एक टी मैट्रिक्स में स्टोर करानी है। तो क्या जाएगा, यहाँ पर उसकी फर्स्ट वाली एज जाएगी, सेकंड वाली एज जाएगी, थर्ड वाली, और यहाँ पर n माइनस वन वाली एज जाएगी। अब हर एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल बी टू पार्ट्स, वन इज द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड नेक्स्ट इज द एंडिंग वर्टेक्स। डन। सपोज कि पहले वाला जो हमने ग्राफ अभी भी कंसिडर किया था, मैंने उससे सी और ई एक एज ले ली थी शुरू में, तो इसमें क्या आ जाना है, स्टार्टिंग वर्टेक्स उसका सी आ जाना है और एंडिंग वर्टेक्स उसका ई आ जाना है। तो कहता है इस तरीके से ये एजेस स्टोर होनी है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट दैट वी विश टू ऑब्टेन while solving your minimum spanning tree problem। और इस वाली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू n माइनस वन इंटू टू, ये इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होना है। इसमें मतलब n माइनस वन एजेस आने वाली है रिजल्ट के अंदर। डन बेटे। तो अब क्या कहता है कि हमने सबसे पहला काम बेटे क्या किया था अपने, जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी अभी अभी, हमने क्या किया था, वी चूजन, कौन सी एक एज चूज की थी, चूज द एज विद मिनिमम वेट, है ना। मिनिमम वेट कौन सी निकली थी, वो सी और ई वाली एज निकली थी। तो ये क्या कहता है, उसको अब नाम दे दो के और एल का। ठीक है, के और एल का नाम दे दो, और के एल एल को क्या करो, इनिशियली विजिटेड में डाल दो, के और एल को। डन। और बाकी की जो बची उनको नॉन विजिटेड में डाल दो, सबको। अब कहता है नॉन विजिटेड से एक वर्टेक्स उठाओ, उसको देखो वो के ज्यादा पास है या एल के ज्यादा पास है। उससे भी पहले बेटे
के और एल क्योंकि अब विजिटेड में आ गए, इसका मतलब क्या होना है, नियर ऑफ के इज इक्वल टू नियर ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो हो जाना है, जो कि हमने नियर की डेफिनेशन देखी है। और ये वाली जो वर्टेक्स है, सपोज ये ए है, ठीक है, ए का जो नियर है वो किसके इक्वल होना है, पहली बात तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना है क्योंकि वो नॉन विजिटेड सेट में पड़ा है। अब कहता है जब नॉन इक्वल टू जीरो होना है तो ये देखेगा कि ए वर्टेक्स के ज्यादा पास है या एल के ज्यादा पास है। डन। सपोज इसकी डिस्टेंस 4 है, इसकी डिस्टेंस 5 है, तो नियर ऑफ ए में क्या जाने वाला है, इज इक्वल टू के जाने वाला है। कि जितने भी वर्टिसेस विजिटेड सेट में पड़े हैं और वो नेबर्स हैं नॉन विजिटेड सेट के एक वर्टेक्स के, तो सभी वर्टिसेस के उनकी डिस्टेंसेस कंपेयर कर लो, मींस नॉन विजिटेड वाले सेट में से जो विजिटेड वाले सेट की एजेस हैं उन सबको कंपेयर कर लो, और उनमें से जो सब में से मिनिमल हो उसको क्या करो, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के नियर को असाइन कर दो। जैसे हमने क्या किया इसमें, ए वर्टेक्स था, वो के से उसकी डिस्टेंस 4 थी, एल से उसकी डिस्टेंस 5 थी, तो ज्यादा छोटी डिस्टेंस किसकी है, के की है, इसलिए नियर ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू के। डन। तो ये वाला काम बैठेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, प्रिंस एल्गोरिथम शुरू किया, हमने हमने बोला कि चूज एन एच के एल which is the which is having minimum weight, जो मिनिमम वेट की एच है वो हमने चूज कर लिया, उसको हमने के एल बोल दिया। अब कहता है कि के एल के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब मेरे पास विजिटेड सेट में तो खाली के और एल ही है ना, विजिटेड सेट में मेरा के और एल है, और यहाँ पर काफी सारी वर्टिसेस यहाँ पर बची हुई है। अब इन सभी वर्टिसेस के मुझे नियर से इनिशियलाइज करने हैं, तो मैं क्या करूं, फॉर फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ओके, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन मैंने एक लूप चलाया, इसमें मैंने क्या बोला, कहता है इफ कॉस्ट ऑफ आई टू के इज लेस देन कॉस्ट ऑफ आई टू एल, देन नियर ऑफ आई will be equal to k, else else near of I will be equal to L। ठीक है, लॉजिकल है कि एक वर्टेक्स उठाना है, क्योंकि विजिटेड में मेरे पास दो ही वर्टेक्सेस हैं के और एल, तो हर एक नॉन विजिटेड सेट के वर्टेक्स को के और एल इन दोनों से डिस्टेंसेस कंपेयर करूंगा, जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी उसके क्या करूंगा, उसको नियर को साइन कर। डन बेटे। अब उसके बाद क्या कहता है, क्योंकि कहता है कि के और एल मैंने चूज कर ही लिया, मींस के और एल तो मेरे आ ही गए रिजल्ट में, तो के और एल के आने का मतलब क्या हुआ कि जो टी मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसका जो फर्स्ट कॉलम है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के। ऐसे ही जो टी रो है वो जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम है वो इज इक्वल टू एल। देखो ना, मेरे को रिजल्ट बनाना है, ये मेरा रिजल्ट है, तो पहली तो इसने एच चूज ही कर ली ना, वो तो के और एल है, वो इस वाली स्टेटमेंट से ही आ गई, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये वाला काम कर रही है, आपके रिजल्ट को इसमें इसने डाल दिया। इसके साथ साथ बेटे क्या करना है, क्योंकि ये दोनों ही किस में आ गई है, वेस्टेड में आ गई है, तो नियर ऑफ के इज इक्वल टू नियर ऑफ एल, ये इज इक्वल टू जीरो के आ गई। ये क्या डिनोट कर रही है कि इनको हमने विजिट कर लिया, इनको हमने दोनों को देख लिया। इसके साथ साथ एक मिनिमम कॉस्ट, मैंने एक वेरिएबल रखा है जो कि मिनिमम कॉस्ट स्टोर करा रहा है, तो अभी एक ही एज आई है, वो इज इक्वल टू किसके हो जाना है, कॉस्ट ऑफ के और एल के हो जाना है। तो जब भी हम कोई एज ऐड करेंगे तो उसका कॉस्ट हम इसमें ऐड करते रहेंगे मिनिमल कॉस्ट में। डन बेटे। तो अब तक क्या हुआ, हमारे पास एक एज आ गई। अब मुझे एजेस कितनी चाहिए थी, 1 to n-1 चाहिए थी। 1 to n-1 में से एक एज आ गई, तो बाकी कितनी एज बची, n-2। यस नो, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एक लूप चलाना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 2 to n- कितना 1, तो ये कितने एचएस देने वाला है, मेरा n-2 एचएस रिजल्ट करने वाला है। अब कहता है ये निकलेगी कैसे, हर एक edge कैसे निकलने वाली है, वी नीड टू चूज अ u सच दैट, उसकी कंडीशन क्या होने वाली है कि पहली बात तो वो क्या करे, नॉन विजिटेड सेट में हो, इसका मतलब नियर ऑफ u इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए,
एंड एंड क्या होना चाहिए, कहता है उसकी जो डिस्टेंस है कोस्ट ऑफ यू फ्रॉम इट्स नियर ऑफ यू, वो क्या होनी चाहिए, इज मिनिमम। बेटे इसको समझ लेना एक बार सभी लोग, जो हमने पहले भी ग्राफ जो बनाया था, अभी अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया था, तो उसमें हमने किया क्या था एग्जैक्टली exactly? हम कर क्या रहे थे बेटे उसमें, हमने क्या किया था कि नेबर्स निकाले थे। सपोज के और एल आगे मेरे विजिटेड में, तो के और एल के वो वाले नेबर्स जो कि मेरे नॉन विजिटेड सेट में पड़े हैं, ये सारे के सारे नॉन विजिटेड सेट वाले नेबर्स हैं, यही कर रहे थे ना हम, नॉन विजिटेड सेट वाले नेबर्स हैं। तो कहने हैं इन सभी नेबर्स में से मुझे वो वाला नेबर चूज करना था जिसकी डिस्टेंस मिनिमम है, या के से या एल से मिनिमम डिस्टेंस। अब कहता है वो जो डिस्टेंस वाला फंडा वो अब हमने किस में मेंटेन किया है, विद द हेल्प ऑफ नियर मेंटेन किया है। डन। तो कहता है नियर ऑफ अ वर्टेक्स आई, अब क्या कंटेन कर रहा है, वो वाला वर्टेक्स मेंटेन कर रहा है जो कि बिलोंग करता वी को, और उसकी डिस्टेंस आई से क्या हो, मिनिमल, वो वाला वर्टेक्स मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने वही काम किया बेटे, जो था कि वो वाला वर्टेक्स चूज करना था नॉन विजिटेड में से, जो कि विजिटेड सेट में से किसी भी वर्टेक्स के सबसे क्लोजेस्ट है। तो वो काम करने के लिए क्या किया, चूज अ यू सच दैट, पहली बात तो वो नॉन विजिटेड में लाई करे, उसके बाद जो उसकी डिस्टेंस हो वो मिनिमम। ओके बेटे, तो हमने वो वाला एक यू चूज कर लिया। अब कहता है वो यू चूज करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम बेटे क्या करना है, अब हमें इस जो यू को हमें क्या कर देना है, रिजल्ट में डाल देना है बेटे। अब हमारी नई एक एज आ गई है ना, हमारी ये क्या आई, नई एज आई। वो वाली नई एज है क्या, इसका मतलब मुझे टी ऑफ आई ऑफ वन में क्या डाल देना है, इज इक्वल टू यू डाल देना है। और इसके क्लोजेस्ट वर्टेक्स है कौन सा, जो कि विजिटेड में है, वो कौन सा है मेरा, इसका मतलब आई ऑफ टू में तो क्या डाल देना, नियर ऑफ यू डाल देना। इसका मतलब कि यहाँ पर आई चला गया, यू चला गया, और यहाँ पर क्या चला गया, नियर ऑफ यू चला गया। तो ये मेरी सेकंड वाली एज आ गई। डन। ओके बेटे, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला काम क्या करना है बेटे, नेक्स्ट काम करना है कि नियर ऑफ यू वो इज इक्वल टू जीरो कर देना है, क्योंकि अब तो विजिटेड सेट में आ गया। प्लस जो मिनिमम कोस्ट था वो क्या कर देना है, इज इक्वल टू मिनिमम कोस्ट जो पहले वाला पड़ा था, प्लस कोस्ट ऑफ यू और नियर ऑफ यू, इसको इसमें ऐड कर देना है, इसको बेटा इसमें ऐड कर देना है। डन। अब कहता है इतना काम करने के बाद अब और काम बेटे क्या बचा, एक काम और रहता है। वो क्या काम है बेटे आपका, कहता है कि अभी अभी इसने क्या किया, एक केस समझने की कोशिश करना, कि सपोज कहता है बेटा ये ए था, ये मेरे पास बी सी और डी था, इसकी डिस्टेंस मेरे पास 10 थी, इसकी डिस्टेंस मेरे पास 5 थी, इसकी डिस्टेंस 3 थी। अब कहता है कि ये जो ए है मुझे ए का नियर निकालना है, ए का नियर निकालना है, नियर निकालना है, तो इसका मतलब ए पहली बात तो किससे बिलोंग कर रहा है, नॉन विजिटेड से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो वी था, बी था, ये विजिटेड सेट से बिलोंग कर रहा था, ये नॉन विजिटेड सेट से बिलोंग कर रहा था, और ये भी नॉन विजिटेड सेट से बिलोंग कर रहा था। तो जो नियर ऑफ ए होना है वो कितना होना है बेटे, नियर ऑफ ए तो वही हो सकता है ना जो कि क्या करे आपका, जो विजिटेड सेट में लाई कर रहा हूं। तो इसका मतलब नियर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होना था, बी होना था। ये बात बेटे क्लियर है सबको, क्योंकि सी और डी क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये नॉन विजिटेड में लाई कर रहे हैं। खाली बी ही एक ऐसा उसका नेबर है जो विजिटेड सेट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब नियर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू बी। डन। अब कहता है नेक्स्ट वाले स्टेप पे, जस्ट नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्या हुआ, जो वर्टेक्स सी है वो किससे बिलोंग करने लग गया, विजिटेड सेट से बिलोंग करने लग गया। इसका मतलब कि ये नेक्स्ट वाले स्टेप में अब विजिटेड सेट में चला गया। अब कहता है जब सी विजिटेड सेट में चला गया, तो अब फिर से इसने क्या देखा कि जो नियर ऑफ ए है, अब कहता है कि चेक करो क्या नियर ऑफ ए अब चेंज होगा, होना चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन है किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में कंपटीशन है टू बिकम नियर ऑफ ए। तो कौन सा बनेगा नियर, अब की बार इसका नियर सी बनेगा। क्यों, क्योंकि जो पहले वाली जो डिस्ट थी, पहले वाला जो इसका पोस्ट था, पोस्ट किसका, पोस्ट ऑफ ए, और जो नियर ऑफ ए था
वो वाला कोस्ट किससे ज्यादा था, सोच के बताओ, वो कोस्ट किससे ज्यादा था, कोस्ट ऑफ ए और कोस्ट ऑफ सी, कोस्ट ऑफ ए टू सी इससे ज्यादा हो गया। यहां पर देख लो, कोस्ट ऑफ ए पहले क्या था, कोस्ट ऑफ ए नियर ऑफ ए पहले बी पड़ा था, डन। तो इसका जो कोस्ट है वो किससे ज्यादा है, ए टू सी से ज्यादा है, क्योंकि कोस्ट ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू 10 है और कोस्ट ऑफ ए टू सी वो इज इक्वल टू 5 है। इट मींस वी नीड टू अपडेट द नियर, इसका नियर अपडेट कर दूं, नियर ऑफ ए, वो नियर ऑफ ए इज इक्वल टू किसके आ गया, सी के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट विद ईच एडिशन of an intermediate edge or intermediate vertex in the result may, you can say, lead to the change in values of your near vector of the vertices which are present there in your non-visited set। ठीक है, तो कहता है अब इस चीज को हमें इस एल्गोरिथम में लिखना है। तो अभी अभी हमारी ऐड कौन सी वर्टेक्स हुई है, यू वर्टेक्स हुई है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक लूप चलाया फॉर आई, इसको अभी रहने दो बेटे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू n, इसने एक लूप चलाया और लूप चलाने के बाद इसने क्या चेक किया, कहता है कि इफ 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 के अंदर इसने क्या बोला, इफ नियर ऑफ, इफ नियर ऑफ, इसको बेटे कुछ और ले लो, के ले लो, आई हमने ऊपर लिया, के ले लो, के इज इक्वल टू 1 टू n, लूप चलाया, कहता है इफ नियर ऑफ के इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, के नॉन विजिटेड सेट में लाई कर रहा है। और इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ क्या है कि जो कोस्ट है, कोस्ट ऑफ के और नियर ऑफ के, मतलब जो उसके पुराने वाली कोस्ट है वो ज्यादा है किससे, कोस्ट ऑफ, किससे ज्यादा है बेटे, कोस्ट ऑफ, बोलो, ए से यू के बीच में, उससे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि यू तो मैंने अभी भी डाला ना बेटे, यू मैंने अभी भी डाला है, मेरा के एक पहले वर्टेक्स पड़ा था, जो मैंने के का नियर इक्वल टू 0 नहीं था, इसका मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब कोई उसका ऑलरेडी नियर डिसाइडेड था पहले से ही, पहले से फिक्स हुआ हुआ था। कहता है जो पुराने वाले नियर की वैल्यू, यदि मैं अब, क्योंकि यू भी विजिटेड सेट में आ गया, इससे ज्यादा होगी, तो इसका नया नियर बन जाएगा। तो नियर इसका अपडेट होके क्या आ जाएगा, इन दैट केस नियर ऑफ के विल बी इक्वल टू यू, नियर ऑफ के विल बी इक्वल टू यू। तो ये वाला कहता है नियर इसका अपडेट हो जाएगा एंड दिस विल एंड योर एल्गोरिथम। तो एंड में बेटे क्या बनेगा कि हर एक ये वाली जो आइट्रेशन है, इस वाली आइट्रेशन में से ये एक u को चूज करेगा जो कि नॉन विजिटेड में हो और उसकी डिस्टेंस मिनिमम हो, उस u को, उसकी u से रिलेटेड एज को रिजल्ट में डालेगा। ओके, उसके बाद में उसको विजिटेड सेट में डिक्लेयर करेगा, उसके बाद में मिनिमम कोस्ट अपडेट करेगा, प्लस उसके बाद में यहाँ पर अपडेट करेगा कि u के एडिशन से इज देयर एनी चेंज इन नियर वैल्यूज ऑफ अदर। कहता है ये काम करने के लिए फिर से क्या जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा फॉर लूप पर, इसका मतलब कब तक चलता रहेगा, टिल n-1 एजेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एक बार जब एल्गोरिथम खत्म होगा तो इस मैट्रिक्स में मेरी n-1 एजेस आ जाएंगी, इट मींस t इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको जो t की जो आप एजेस को जोड़ोगे तो आपका रिजल्टेंट ग्राफ बनकर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेप सेल। इज देयर एनी क्वेश्चन और डाउट?